नमस्कार। आज के योग सत्र में आपका स्वागत है। और कैसे हो रही है आपकी प्रैक्टिस? बहुत अच्छी हो रही है सर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपका सभी को परिचय दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं सुवर्णा राजकुमार मोरे। पिछले 1.5 साल से मैं सर के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब एज अ फिटनेस बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों को यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। हर आसन जो सर सिखाते हैं, मतलब इतना डीप में सिखाते हैं कि वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो सुवर्णा मोरे जी, पहले हम कुछ आसन ही देख लेते हैं, बाद में बात करेंगे, है ना? तो अभी आप हमें ताड़ासन करके दिखाइए। ताड़ासन। कैमरा परफेक्ट लगाइए। कैमरा परफेक्ट लगाते हुए आप ताड़ासन करके दिखाएंगे। देखते हैं आपका ताड़ासन कैसे हो रहा है। करेक्ट। जैसे कि फॉर्मली स्टैंड ऑन द बोथ फीट, ankles active and locked, feet of the arch, repress on the floor, toes lengthen front, calf muscles rise up, kneecap lift up, thighs muscles rise up, thighs muscle front and outer side rotate back, and pelvis, hip, buttock rise up, core active, stomach core active, navel right side and left side repress inside the back, chest core rise up, ribs rise up, shoulder rotate back, fingertips lengthen floor side, neck and head straight, eye still front of side, stomach push inside the back and buttock bring inside the body, hip straight and steady and firmly, toes lengthen front, mount of the big toe repress on the floor, side of the toes, little toe raise up, mount of the big toe repress on the floor. Stand properly, firmly, neck and head straight, eyes still front to side, Saudhan, eyelids up, without blinking, still, away. And now raise up your hand, ceiling side, lift up. Fingers should be sharpened, shoulders away from the neck, hip lock, navel inside the back, and lock and heels up, heels rise up, pull up, lengthen up, fingers sharpen, hands raise up, shoulders lift up, front side raise up, dorsal back raise up, hip up, legs up, spine lengthen up, pull up, raise up, hip and armpit raise up, pull up, lengthen up, spine lengthen up, pull up, and heels on the floor. Surrender down, Uttan. Surrender down, fingers on the floor. Fingers on the floor. Complete surrender down. Palms up. बीच में बात न करे, कौन बात कर रहे हैं, शांत रहे. Palms on the floor and surrender down. Complete surrender down. Elbows are goes to outward side. And Urdhva hand straight, raise up. Raise up your hands. Tadasana. Ready for? अभी आप उत्थित त्रिकोणासन करके दिखाएंगे. उत्थित त्रिकोणासन. सभी कमांड्स अप्लाई करते हुए, एक एक कमांड को फॉलो करते हुए
Frontal thigh, push inside. Back leg, stamp. Upper hip, rotate back. Upper chest, rotate back. ये आसन सबसे अच्छा है और ये आसन उत्थित त्रिकोणासन सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना ये आसन इम्पोर्टेंट है कि इसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। हर दिन प्रैक्टिस में इसे रहना चाहिए। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर है, हाई बीपी है, हिप में पेन है, स्लिप डिस्क है, उन सभी के लिए आसन बहुत अच्छा है। बीपी को भी ये नॉर्मल करता है। स्ट्रेट अप, स्ट्रेट अप, palms on the waist, palms on the waist. कंटिन्यू। पार्श्वोत्तानासन करके दिखाएंगे लेफ्ट साइड में। पार्श्वोत्तानासन। नमस्कार फ्रॉम बैक साइड। बैक साइड नमस्कार। ये पार्श्वोत्तानासन में चेस्ट रिब्स पूरे खुल जाते हैं। Stomach in, pelvis in, core active, buttock and hip, extend backward side, spine lengthen front, chest ribs lengthen front, pelvis longish front side, core active, stomach flat, and surrender down. Stay there little bit. Keep smooth and soft. Inhale, exhale. Straight up, slowly up, and back bend. Toes in, Parshvottanasana, Prasarit Padottanasana now. Continue. Keep doing. बीच में कौन बोल रहे हैं? बीच में नहीं बोलना। आपको तो मेरा पानी लगेगा। Hip raise up, buttock raise up, buttock and hip lengthen ceiling side, pull up ceiling side. ये आसन एंजाइटी में बहुत अच्छा है। जो उनके लिए आसन अच्छा है। शीर्षासन के सभी लाभ इसमें मिलते हैं। ब्रेन के तरफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जैसे कि हार्ट के बीट्स वगैरह बढ़ना, जब बढ़ते हैं तब नहीं करना, किंतु रेगुलर प्रैक्टिस में आहिस्ता आहिस्ता इसे उतारते हैं। इसकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कुछ दिन में सभी क्रियाएं, लंग्स की क्रियाएं, हार्ट की क्रियाएं अच्छी होने में बहुत मददगार है। स्ट्रेट अप, जंप एंड जॉइन। सुवर्णा जी अभी अर्धचंद्रासन करके दिखाएंगे। अर्धचंद्रासन, अर्धचंद्रासन पहले सेंटर में कर लेना। यस। हाँ, सेंटर में कर लेना पहले। कंटिन्यू। ऊपर के पांव के टोस थोड़े सेल्फ साइड में खींच लेना। हाँ, और टोस को थोड़ा फ्लोर के तरफ लाइए। हाँ हाँ हाँ, गुड। फॉर्मली ठहरे, ब्रीदिंग नॉर्मल हो।
ब्रीथ करते हुए रहें, स्लोली रिटर्न। जैसे कि साइटिका है, संधिवात है, इनमें ये आसन बहुत अच्छा कारगर है। पांव की शक्ति बढ़ती है, हिप के प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, स्पॉन्डिलाइसिस, साइटिका, स्लिप डिस्क आदि में अच्छा है। अभी परिवृत्त त्रिकोणासन करके दिखा गया, परिवृत्त त्रिकोणासन। परिवृत्त है वो आसन आपने लेफ्ट साइड से किया है, इसे राइट साइड से करें। परिवृत्त राइट साइड। हाँ, ये परिवृत्त त्रिकोणासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पिन, पेंक्रियाज, ये सभी एक्टिव होते हैं। इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, बॉवेल, इन सभी की क्रिया इसमें सुधरती है। लंग्स के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, बीपी नॉर्मल रखने के लिए अच्छा है, डायबिटीज में अच्छा है। इसे हर दिन के प्रैक्टिस में करना चाहिए। स्ट्रेट अप, स्ट्रेट अप, जंप एंड ज्वाइन। अभी अर्धचंद्रासन वॉल के ऊपर कीजिए, वॉल के ऊपर लेग स्टैम्प करते हुए, लेग स्टैम्प ऑन द वॉल। लेग शुड बी, नहीं साइड एंगल से नहीं, आपके पांव को वॉल के ऊपर स्टैम्प करना है, ऐसे हिट करना है वॉल के ऊपर। हाँ करेक्ट। कंटिन्यू। नीचे के पांव के बटक को थोड़ा अंदर लाइए और ऊपर का पांव अभी थोड़ा ऊपर जाए। हाँ, नीचे के पांव का हिल और आर्च स्टैम्प करें। ऊपर का हिप रोटेट कर दीजिए, पेल्विस को ऊपर के हिप के साइड में खींचे और हिप को एक्सपैंड कर दीजिए। ऊपर के पांव के टोज थोड़े से ऊपर जाएं। हाँ, नीचे का पांव और थोड़ा सा बाहर चला जाए टोज में से, टोज में से। हाँ, थोड़ा सा हिप अंदर लाइए, बटक अंदर लाइए थोड़ा। हाँ, हिप को फैलाए अभी ऊपर के साइड से। वेरी गुड, रिटर्न आ जाइए, रिटर्न। ठीक। अभी यही आसन दीवार के वॉल के सहारे करेंगे आप, वॉल के सहारे। वॉल के ऊपर पांव होगा। कोई बीमार इंसान है, सेंटर में नहीं कर सकते हैं, वॉल के ऊपर पांव स्टैम्प करके नहीं कर सकते हैं, तो वे दीवार के सहारे वॉल कर सकते हैं। थाइस के संबंधित, लेग्स के संबंधित हर डिसीज में, हिप के संबंधित हर प्रॉब्लम में। थोड़ा ऊपर का पांव नीचे लाइए, बहुत ऊपर गया, थोड़ा नीचे और नीचे और नीचे थोड़ा। हाँ, होल्ड। हेड को सेंटर में रखें, हेड टर्न ना करें, हेड इधर क्या। हाँ, हेड को थोड़ा नीचे जाने दीजिए, हेड ऊपर उठा जाता। हाँ, हाथ थोड़ा सा और हेड के तरफ जाए ऊपर का, और सिर्फ हिल को रखना वॉल पर, सिर्फ हिल, बटक वॉल को टच नहीं होना है, सिर्फ हिल टच होगी वॉल। बटक शुड बी अवे फ्रॉम द वॉल। ऊपर का हिप रोटेट करें, रिटर्न आ जाइए, रिटर्न आ जाइए, जंप एंड ज्वाइन।
अभी आप क्यों? अपने यहाँ पर जो पहला सूर्य नमस्कार के जैसा विन्यास होता है वो करके दिखाइए। आराम से करना, घाई नहीं, गड़बड़ नहीं, कोई घाई नहीं करना, हर स्टेप परफेक्ट हो। लेफ्ट साइड ऑफ द फीट के अंदर फिंगर जाने दीजिए, फिंगर्स, हाँ। ठीक, कंटिन्यू। Legs are closer. थोड़ा पाँव में और आर्म्स में डिस्टेंस बढ़ाइए। गुड। वेरी गुड। पाम्स बैक से हिल के पीछे से पकड़िए नेक्स्ट राउंड में, एंड फोरहेड टच दूसरे राउंड में। Forehead touch now. Continue. पीछे ले जाइए, थोड़े बहुत आगे आए हैं, थोड़े पीछे ले जाए और थोड़े पीछे। लेग्स आर टुगेदर, लेग्स आर टुगेदर। हाँ, गुड। चतुरंग दंडासन ए, बी, बी नाउ। ऊर्ध्वमुख श्वानासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। बी, बी, अधोमुख श्वानासन। कंटिन्यू। उत्तान, फोरहेड टच। ऊर्ध्वस्थ, नमस्कारासन, ताड़ासन। रिलीज। बैठिए, बैठिए सुवर्णा जी, बैठिए। कैसे लग रहा है? प्रैक्टिस आपने अच्छी की? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इन दिनों में आपने क्या क्या सीखा इस 1.5 साल में? सर वैसे तो बहुत कुछ सीखा। हाँ। मतलब सिर्फ योगा नहीं, हम लोगों ने प्रॉपर डाइट सीखा, बहुत सारा हाँ। आयुर्वेद की ज्ञान मिला, मेडिटेशन हाँ। सीखा, प्राणायाम भी सीखा। मेडिटेशन जो हम करते हैं मुझे नहीं लगता कहीं और हम सीख सकते आगे, जो हमारे क्लास में हम लोग सीख। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहुत सारी जगहों पर योग अभ्यास का मतलब सिर्फ
एक्सरसाइज ही देखा जाता है। यस मेडिटेशन वगैरह चीजें बहुत कम होती है। मेडिटेशन भी हुआ तो भी जैसे कि कंसंट्रेशन मतलब मेडिटेशन, कंसंट्रेशन के टाइप में मेडिटेशन लिया जाता है, सांसों के तरफ देखो वगैरह वगैरह वगैरह, उसे मेडिटेशन कहते हैं। किंतु मेडिटेशन प्रत्याहार से स्टार्ट होता है। प्रत्याहार धारणा ही नहीं है, प्रत्याहार नहीं किया है, धारणा नहीं है, और मेडिटेशन के नाम पर सिर्फ एक मन की कल्पनाएं चलती रहती है। हमारे क्लास में हम निरोध अच्छा हाँ, योगानुशासन सीखे, वो शायद कहीं और नहीं सीख पाते। मतलब बाकी जगह पर सिर्फ हम योगा करते हैं, एज ए एक्सरसाइज करते, मतलब यहाँ एज ए एक्सरसाइज वो कॉन्सेंट्रेशन वो कहीं और नहीं हो पाता है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये सही है, देखने में भी यही आता है। अभी वर्ल्ड वाइड योग शास्त्र योगासन के तौर पर प्रसिद्ध हुआ है, फेमस हुआ। हर कंट्री में, हर देश में, हर शहर में, यहाँ तक कि गांव में भी आसन प्राणायाम तो होते हैं, किंतु प्रत्याहार का अभ्यास, धारणा का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास ये नहीं देखा जाता है। बहुत ऐसे बहुत कम गुरुकुल है जहां पर प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का भी अभ्यास कराया जाता है। और ये जरूरी है अगर हमें योग करना है, अर्थात योग शास्त्र फॉलो करना है। और योग शास्त्र सीखना है तो केवल एक एक्सरसाइज के तौर पर सीखकर उसका विशेष महत्व नहीं होगा, विशेष उपयोग नहीं होगा। वो कैसे होगा कि जैसे एक जो लाइफ लॉन्ग जंगल में रह चुका, पूरी लाइफ उसकी जंगल में गई, कभी गांव नहीं देखा, और वहां पर एक विमान, एरोप्लेन खराब होकर उतर जाता है, पायलट लोग वहीं पर उसे छोड़कर चले जाते हैं, अभी जंगल में से इसे कहां खींच कर लेकर जाए, छोटा विमान है, छोटा एरोप्लेन है, वहीं पर छोड़ दे, निकल गए। अभी वो जंगल में का इंसान ने कभी एरोप्लेन देखा नहीं है, वो क्या करेगा? जब बरसात होगी, धूप गिरेगी, तब उस एरोप्लेन के छांव में बैठने के लिए उस एरोप्लेन का यूज करेगा। ऐसे कुछ दिन होने के बाद इधर उधर हाथ लगाएगा, अंदर भी दिखता है खिड़की से, यहाँ तो कुछ लगा है, अंदर कुछ कुछ चीजें हैं, फिर इधर उधर हाथ लगाता है, एक दिन दरवाजा खुल जाता है, डोर ओपन हो जाता है एरोप्लेन। अरे ये तो अंदर से खुलता भी है, तो अंदर जाके बैठ जाता है। अब उसे लगता है अरे ये तो मुझे रहने के लिए बहुत अच्छा मिला, मैं तो जंगल में इधर उधर झोपड़ी बनाकर रहता था, इसमें तो रहने के लिए बहुत अच्छा है, तो उसमें रहना चालू कर देता है। अभी कुछ दिन के बाद फिर इधर उधर हाथ लगाते लगाते, बहुत सारे बटन दिख रहे, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता, इधर उधर हाथ लगाता है तो एक बटन को हाथ लग जाता है और रेडियो स्टार्ट हो जाता है। अब गाने भी सुनने लगा, है ना। ऐसे करते करते एक दिन उसका गलती से हाथ लग जाता है और एरोप्लेन स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। गड़बड़ से फिर से और कुछ दबा देता है, एरोप्लेन ठहर जाता है। अब वो एरोप्लेन वहीं के वहीं चलाकर खेलने के लिए उसी जगह पर यूज करने लगता है। ऐसे है, इसी तरह होता है। योग शास्त्र सीखने जाते हैं और योग शास्त्र सीखने जाकर योग के नाम पर केवल एक्सरसाइज करते रहते हैं। योग के नाम पर केवल प्राणायाम के नाम पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और योगासन के नाम पर केवल योग आसन नहीं करते, केवल एक्सरसाइज के लेवल पर आसन करने लगते हैं। और ये योग शास्त्र सम्मत नहीं है। योग शास्त्र सम्मत ये है, आसन की पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखे, एनाटॉमी सीखे, तो एनाटॉमी शास्त्र सम्मत हो, अभ्यास शास्त्र सम्मत हो। अभ्यास जैसे शास्त्र सम्मत है, उसी तरह से आसनों का अभ्यास किया जाए, शास्त्र को जो अपेक्षित है।
आसन स्थिर चाहिए, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में आसन स्थिर भी होगा, सुखपूर्वक भी होगा। ठीक है, सुखवासना, किंतु इसके लिए सालों भर मेहनत करने के बाद कहीं जाकर आसन स्थिर और सुखासन की तरह हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आसन है जो स्थिर और सुखासन में परिवर्तित होते हैं। जैसे शीर्षासन है, वो भी स्थिर सुखासन में परिवर्तित होता है। जैसे कि आपका उत्थित त्रिकोणासन, प्रयुक्त त्रिकोणासन स्थिर और सभी सुखासन है। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद एक तौर से इसे तब लेना चाहिए जब तक आपका एक तप कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप योग को नहीं जान सकते। कोई भी, हम भी, आप भी, हर कोई कम से कम एक तप अभ्यास होना चाहिए। एक तप उसे कहते हैं एक 12 साल की लगातार की हुई साधना, हर दिन की हुई साधना का जो तप है, जो आसन करने का जो तप है, वो तप शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, प्राण के ऊपर कंटिन्यूअसली हो रहा है, हर दिन हो रहा है। प्राण से शरीर के लिए हो रहा है, शरीर से प्राण के लिए हो रहा है, प्राण और शरीर से मन के लिए हो रहा है, मन से प्राण के लिए हो रहा है। आसन मन के लिए किया जा रहा है। मन में जब तक आसन ना उतरे तब तक शरीर से आसन कैसे संभव है? प्राणों में जब तक आसन ना उतरे तब तक आसनों में प्राण कैसे प्रवेश होना संभव है? ऐसे ही साधना फिर आगे बढ़ती जाती है, योगानुष्ठान आगे बढ़ते जाता है। एक तप होने के बाद फिर समझ में आता है हकीकत में योग शास्त्र क्या है, योग अभ्यास क्या है, योग तपस्या क्या है, योग स्वाध्याय क्या है, ये समझ में। और इस योग स्वाध्याय का पाठ हर दिन होता रहे, हर दिन होता रहे। जैसे कि ज्ञानेश्वरी का पाठ हर दिन होता है, श्रीमद् भागवत का पाठ हर दिन होता है ना? ज्ञानेश्वरी का पाठ हो, श्रीमद् भागवत का पाठ हो, उसी पाठ की तरह इसका भी पाठ हर दिन होना है। ये भी एक लंबी यात्रा है और एक सबसे महानतम यात्रा है, महत्तम। सांख्य के बाद पहला शास्त्र योग शास्त्र ही है। इसलिए योग साधना करने की शुरुआत करें तो परफेक्टली करें। कहीं ना कहीं गुरुकुल से जो जुड़े हुए हैं उनके साथ अगर साधना होती है, परंपरागत साधना सीखी हुई परंपरा से आई हुई रहती है, तो उनके पास पूरा इसका ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान होता है। नहीं तो मराठी में कहते हैं अर्ध्या हळकुंडाने पिवळं, अर्ध्या हळकुंडाने पिवळं होऊन नाही चालणार। तर ते नित्य साधनेने, नित्य सरावाने याचा अभ्यास, नित्य पाठाने याचा अभ्यास झाला तरच तो पूर्ण होतो। और आप ये बताएं सभी को कि आपने इसमें तो बहुत कुछ सीखा, आपको इससे क्या क्या लाभ हुआ? लाभ भी बहुत सारे हुए। मुझे बहुत सालों से एसिडिटी का प्रॉब्लम, और मतलब इतनी परेशान हो गई थी मैं कि हम हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ता था एसिडिटी के लिए सिर्फ। लेकिन जब ज्वाइन किया है और जैसे आयुर्वेदा का जैसे हमने डाइट जो बोला फॉलो करने के बाद मुझे आज तक पिछले 1.5 साल हुआ मुझे ज्वाइन करके। पिछले 1.5 साल में एक भी में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। मतलब इसी में सब मेरा फिटनेस कितना बड़ा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और आपका कंसंट्रेशन बढ़ा, एंजाइटी कम हुआ? हाँ सर, वो भी हुआ। वो तो मेडिटेशन में अपना हो ही जाता है। हो जाता है, बराबर। कंसंट्रेशन करना है। मेडिटेशन के अलावा योगा क्लास में भी कान के अलावा कोई और चलता ही नहीं है शायद। मतलब जो आप कमांड वो सुनना और वो करना, बस इतना ही याद होता है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज का सत्र आपका बहुत अच्छा हुआ और आप सबको कुछ संदेश देना चाहेंगे क्योंकि आपका भी ये फेसबुक लाइव बाद में बहुत सारे लोग देखेंगे, कम से कम 10,000 तो लोग देखेंगे, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे सबके लिए आप?
मेरा खुद का मानना ऐसे कि हम कितना जिएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जिएंगे। अगर फिटनेस के साथ हमें जीना है, जो भी लाइफ हम जिएंगे वो फिटनेस के साथ जीना है, तो उसकी योगा प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए। इसे जिंदगी में कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही है, सही है, सही है। अगर निरोगी लाइफ जीना है तो हमें योगा करना ही चाहिए। जी हाँ, सही है। और एक केवल निरोग, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। और योगा हाँ हम निरोगी लाइफ जी ही नहीं सकते। हाँ, सही है, सही है। और ये निरोगी सिर्फ निरोगी शरीर से ही नहीं, ये निरोगी मन से भी है, ये निरोगी प्राण से है, मन से है, इंटेलेक्चुअल से है। और ये योग से संभव है। निरामय जीवन ये योग से संभव है। आपने बहुत अच्छा कहा, कितना हम जीते हैं वो किसके हाथ में नहीं है। खास बात यह है कि इंसान कितने साल जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो लाइन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किसका कम है, किसका ज्यादा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक दो छोर है, जन्म और मृत्यु। उसके बीच का जो कालावधि है, दोनों के बीच का, जन्म और मृत्यु के बीच का, वो हमारे हाथ उस में होता है ना। कालावधि को जीवन कहा जाता है। उस कालावधि को जीवन कहा जाता है। हमने वो कालावधि, वो जीवन कैसे जिया ये महत्व रखता है, ना कि ये कालावधि हमारा कितना बड़ा था या कितना छोटा था, ये उतना महत्व नहीं रखता है। हमने किस तरह से जिया, कितने ऊंचाई से हमारा जीवन रहा, ये अधिक महत्वपूर्ण है। किस तरह से हमने जिया, जीवन में क्या प्राप्त किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जीवन में हमने कैसे जिया, कितने हाइट से जिया, कितने आनंद से जिया, कितने खुशी से जिया, ये महत्वपूर्ण है। तो आज का सत्र यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। और कुछ आपको बोलना है, कुछ नहीं सर, बोलना है? हाँ मुझे बैक बेंड करके वो चक्रासन करना है वॉल पे। हाँ, कर लीजिए, कर लीजिए, जाइए कर लीजिए। गुड, वेरी गुड। और चक्रासन और अलग एंगल से करना चाहेंगे आप? हाँ सर, बेंच विद के प्रॉप्स। ऊपर करना चाहेंगे? हाँ सर, प्रॉप्स पे हाँ, हाँ कर लीजिए। वेरी गुड। हाँ, ये बेंच ठीक है, अच्छा है। गुड। बैक ऑफ द एंकल को लिफ्ट अप कर दीजिए काफ में, और काफ का हिट डॉर्सल बैक में दीजिए। शोल्डर से थोड़ा सा लोअर रिप और शोल्डर के बीच में, पीठ के तरफ से। हाँ, आर्म पिट्स को उठाइए, चेस्ट को उठाइए। गुड, गुड, ठीक, बहुत अच्छा। और कोई आसन करने की इच्छा रह गई है? बकासन। बकासन, हाँ कर लीजिए, ठीक। गुड, बहुत अच्छा, अच्छा। जैसे जैसे अभ्यास करने लगते हैं वैसे वैसे आसन में ठहरने का कालावधि भी बढ़ने लगता है ना। आसन फिर हर आसन
स्थिर और सुखासन होने लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें कहा आपने। अपने आपके साथ जो अभी तक प्रैक्टिस करते आए है ना, आपके साथ प्रैक्टिस करते आए, अभी जो क्लास में हो ना हो, हाँ, ऐसे कोई आप बता नाम लिए बगैर कुछ उदाहरण दे सकते हैं उनके किसी डिसीज का ठीक होना, आपको याद हो तो? हाँ, मेरी एक नेबर मेरे साथ ज्वाइन हुई थी, मतलब एक 20-25 साल की लड़की थी, जिसे बहुत स्ट्रेस था, मतलब जिंदगी में कभी नहीं किया था, कभी भी कुछ भी नहीं किया था उसने, मतलब एटलीस्ट वॉकिंग भी पता नहीं था उन लोगों को। लेकिन जब उसने हमारा क्लास ज्वाइन किया तो 6 मंथ्स में उसकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि मतलब वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये कैसे हुआ सब। हाँ, सही है, अभी सही है। बहुत सारे आसन, मतलब अभी तो क्लास में नहीं है वो क्योंकि शादी हो गई, लेकिन ये वो आसन अभी भी आप फॉलो करके हम लोगों को वो मतलब जितना याद है उसको करती है और वो उसको बहुत बेनिफिशियल है वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो उत्तानासन में आधा भी कर नहीं पाती थी, अभी वो पूरा कर पाती है। जी हाँ, जी हाँ। और आपके आपके पहचानत के एक आए थे जिनको हार्ट ट्रबल था, देखिए यस हार्ट ट्रबल था, फिर उन्होंने ऑपरेट करने से 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया था, ओनली 1 मंथ बिफोर ज्वाइन किया, और 15 दिन के बाद उन्होंने ऑपरेट किया था। तो बाद में जब वो 15 दिन, उनका अनुभव ये रहा था, उनका खुद का कहना, गुरुजी मैं पहले ही ज्वाइन अगर कर लेता तो मुझे ऑपरेट करने की नौबत नहीं आती थी। मुझे अभी समझ में आ रहा है, 15 दिन में मैंने जो अनुभव किया, इतना अच्छा अनुभव कर रहा हूँ इस 15 दिन में कि पश्चाताप हो रहा है मुझे कि मैंने ये पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया था। पहले अगर कोई मुझे गाइड करता तो आज ऑपरेट करने की नौबत नहीं आती थी। फिर ऑपरेट करने के 1 महीने बाद फिर से उन्होंने ज्वाइन किया, फिर से उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिस करते रहे। 1 महीना उनसे हल्के फुल्की प्रैक्टिस ली। ऑपरेट करने के बाद जब नया नया ऑपरेट किया हुआ है तो उस वक्त जो जिस तरह से प्रैक्टिस कर ली जाती है उस तरह से उनकी साधना कर ली। फिर बाद में 1 महीने के बाद फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप में हमने लेना स्टार्ट कर दिया था। तभी उन्होंने कहा था, गुरुजी अभी मैं कभी भी योग साधना नहीं छोड़ूंगा, योग अनुष्ठान करना कभी भी नहीं छोड़ूंगा, योग की तपस्या, योग का स्वाध्याय हर दिन करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूं तो मुझे पता चल गया है कि फिर से मुझे ऑपरेट कर लेना पड़ेगा। हाँ सर, और तो ये बात अभी भी कर रहे हैं, अभी भी वो रोज योगा करते हैं, अभी भी करते हैं ना योगा। ये कोरोना की वजह से क्या हुआ कि बाद में क्लास भी हॉल में के क्लासेस सभी बंद हुए कोरोना की वजह से। उस वजह से आप हम सभी अभी ऑनलाइन है ना, अभी सभी ऑनलाइन चल रहा है। तो सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को भी। ये सभी योग करते रहे, योग का अभ्यास करते रहे, योग साधना का जो आनंद है वो लुत्फ उठाते रहे और निरोगी निरामय जीवन करते जीते रहे और दूसरों को भी गाइड करते रहे, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहे, है ना। हर किसी के मोटिवेशन से सबको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी का, सभी दर्शकों का भी नमस्कार। आपने आज के सत्र में सहभाग लिया। पूजा जी नमस्कार, आराध्या जी बागवे नमस्कार जी, प्रणाम आप सबको। आज कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर संपूर्ण करते हुए, पूर्ण करते हुए आने वाले सत्र के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद।